Hello, good evening, students. Now, today we are going to start with the problems. We have learned the theoretical part of this bill of exchange. We were learning bill of exchange. We have finished the theoretical part. Now, we will start with the practical sums. In examination, normally they ask you to draft journal entries, to draw journal entries. You know, there are basically three parties to a bill. First one is drawer. Second party is drawee, you know. And the third one is payee. Drawer is a person who draws the bill. Drawee is a person on whom bill is drawn. And payee is the person who ultimately receives the amount of bill. There are three parties to a bill normally. In examination, they will ask you to draw journal entry, to give journal entry in the books of drawer, or sometimes they ask you in the books of drawer. परीक्षेला ड्रॉवरच्या बुक्समध्ये एंट्री मारा असा प्रश्न येतो किंवा ड्रॉवीच्या बुक्समध्ये एंट्री मारा असा प्रश्न येतो. जास्त करून हे मोस्ट important is drawers books. So in the books of drawer, how the entry will appear, that first of all we will learn. प्रथम आपण हे शिकू. पेईच्या बुक्समध्ये एंट्री तुम्हाला येणारच नाही परीक्षेला, हे लक्षात ठेवा. Either in the books of drawer or in the books of drawee, you will have to pass journal entries. So we will start from here. First of all, we will solve some sums from this point of view. From the point of view of drawer, we will learn how to pass entries. Then बाद में हम सीखेंगे ड्रॉवे के बुक्स में कैसे एंट्री मारते हैं. So this is how we will start. But before that, let me recall your memory. In the previous year, you learned how to pass journal entries. You have learned that accounting system is normally of two types: Indian system and English system. बराबर? English system is subdivided into two categories as single entry system and double entry system. In the previous year, we learned double entry and throughout the year, during these 5 years, you have to learn this double entry bookkeeping system. So, in case of single entry system, we give single effect to every transaction. And in case of double entry bookkeeping system, we give double effect to each and every transaction. Every transactions are recorded twice. You have learned in the 11th standard. 11वीं में आपने सीखा था double entry bookkeeping system. That same thing we have to follow. As per this system, we give double effect to each and every transaction. Just like a coin which has two sides, every transaction also have two sides. One side is called debit side, second side is called credit side. So every transaction should be recorded in such a manner that we have to record both the aspect of the transactions. तो डेबिट करने का, क्रेडिट करने का, हाउ टू डिसाइड, उसका भी रूल आपने सीखा था प्रीवियस ईयर में. जस्ट रिकॉल दैट आल्सो. So double entry bookkeeping system में we pass journal entries. Then we do ledger posting, you know. Then by the end of the year we prepare trial balance. And then we prepare final account. Out of that, first step is journal. So whenever transaction takes place, they are immediately recorded in journal book. How they are recorded, how they are given double effect, that you have learned in the previous year. Just recall that memory. You know the golden rules of accountancy. पिछले साल आपने सीखा था golden rules of accountancy. पहला रूल था पर्सनल अकाउंट के लिए. जस्ट रिकॉल दैट मेमोरी. पर्सनल अकाउंट. What is the rule of personal account? Debit the receiver and credit the giver. बराबर? Debit
the receiver and credit the giver. Person account is the account of persons. Person may be natural or legal person. Any person who is receiver, that person's account we debit in our books. Similarly, if any person is giver to our business, then we credit that person's account. So debit the receiver and credit the giver. Remember this rule because these rules are very useful in this chapter. In this chapter, we have to pass journal entry only. Therefore, these rules are very useful here. Suppose this is your business. We sold goods to Sunil. Sunil is a person, you know. Sunil's account is a person account. We sold goods to Sunil on credit basis. जब उधार पे माल बेचते तो इफेक्ट goes to person account आपको मालूम है. So in this transaction, Sunil is receiver. Sunil is receiving something from our business. तो इसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे. करो. After some days, कुछ दिन के बाद, Sunil makes payment. Sunil ने पैसा दिया. Now in this transaction, same party Sunil become giver now. He is giving cash to our business. Then in that transaction we credit Sunil's account because Sunil is giver. So this is how any person, when he is receiver, we debit his account. When any person is giver to our business, we credit his account. हे सगळं तुम्हाला आठवत असेल गेल्या वर्षी तुम्ही शिकलाय. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटन्सी त्याला म्हणतो आपण किंवा रूल्स फॉर जनरलायझेशन. रूल्स फॉर जनरलायझेशन. जनरल एंट्री मारताना या रूलचा उपयोग होतो. फार महत्वाची आहे. रिमेंबर फॉर एवर. फर्स्ट रूल इज पर्टेनिंग टू पर्सनल अकाउंट. सेकंड रूल आपने सीखा रियल अकाउंट का. Second rule is related with real account. Real account मतलब it is the account of assets and properties of the business. बिझनेस मध्ये ज्या प्रॉपर्टी असतात, ॲसेट्स असतात त्याचा अकाउंट. इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. So any property or any asset when it comes into the business, we debit that property's account. And when any asset goes out of the business, we give credit effect to that account. For example, suppose this is our business and we purchase machinery from some company. Suppose we purchase machinery, so machinery is an asset. We purchase machinery of rupees 60,000. तो 60,000 का एसेट आ गया बिजनेस में. सो मशीनरी का अकाउंट हम डेबिट करेंगे इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट. सो मशीनरी इज एसेट दैट कम्स इनटू द बिजनेस. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन. और हमने कैश पेड किया उस कंपनी को 60,000 का कैश. 60,000 कैश वी पेड इमीडिएटली. सपोज तो कैश इज ऑल्सो आवर एसेट. इट इज ऑल्सो आवर प्रॉपर्टी. So it is also real account. So cash here goes out. तो इसको हम क्रेडिट करेंगे. बराबर. So this is how this rule is to be applied. Whenever any property comes into the business, that property's account should be debited. And whenever any property goes out of the business, then that property's account should be credited. Remember. Okay. Here rule is applicable for assets, properties. थर्ड रूल आपको मालूम है नॉमिनल अकाउंट का है. नॉमिनल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ इनकम, गेन्स एंड प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. बिजनेस बोलेगा तो उसमें इनकम एक्सपेंस होता रहता है. तो वेन एवर देयर इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इट शुड बी डेबिटेड. डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. बराबर. बिझनेस में कभी भी एक्सपेन्स हुआ, लॉस हुआ, खर्च झाला बिझनेसमध्ये, ही एक प्रकार आपण दुःखाची गोष्ट समजूया, त्याला डेबिट करा.
एंड क्रेडिट करो इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स। एक खुशी की बात है उसको क्रेडिट करो, एक दुख की बात है, गम की बात है, उसको डेबिट करो। सिंपल थिंग। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड, इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। सो एनी काइंड ऑफ इनकम gains profit to the business, that account should be credited, and any kind of expenses or losses suffered by business, it should be debited. So these three simple rules can be used to give entry for any transaction. I will tell you one more thing कि this second rule जो है it is related with assets, बराबर, assets and properties. एसेट का ऑपोजिट क्या रहता है? लाइबिलिटी। आपको मालूम है एसेट मतलब संपत्ति, लाइबिलिटी मतलब कर्जा। द सेम रूल कैन बी रिवर्सली अप्लाइड इन केस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के उल्टा करो, समझा ना। फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी जब बिजनेस में आती है तो इसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, तो उसको क्रेडिट करने लाइबिलिटी। और जब इधर प्रॉपर्टी जाती है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी जाती है उसको डेबिट करने का। जस्ट अपोजिट इफेक्ट दे दो इन केस ऑफ लाइबिलिटी। यही रूल कैन बी रिवर्सली अप्लीकेबल फॉर लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कि हमारा बिजनेस है, बिजनेस में बिल्स रिसीवेबल ये क्या है? एसेट, और बिल्स पेबल ये क्या है? लाइबिलिटी। तो बिजनेस में कोई बिल्स रिसीवेबल आएगा एसेट, तो उसको हम डेबिट करेंगे, और बिजनेस से बिल्स रिसीवेबल जाएगा तो उसको हम क्रेडिट करते हैं नॉर्मली, because it is asset. Apply this rule: debit what comes in, credit what goes. So when bills receivable comes, debit करो, when bills receivable goes, credit करो। वही उल्टा सोचो कि अगर आपने बिजनेस में बिल्स पेबल नाम का लाइबिलिटी, बिल्स पेबल इज लाइबिलिटी, सर का कर्जा अपना, तो दिस बिल्स पेबल अगर बिजनेस में आया तो उसको डेबिट नहीं क्रेडिट करो, समझा। और जब बिल्स पेबल खत्म हो गया, लाइबिलिटी इज पेड आउट, goes out, finish, तो उसको क्रेडिट नहीं डेबिट करते हैं। सो अपोजिट इफेक्ट दे दो। तो दैट थिंग यू रिमेंबर आइडिया फॉर बिल्स पेबल स्पेशली। बिल्स पेबल इज लाइबिलिटी, अप्लाई दिस रूल। व्हेन एवर बिल्स पेबल कम्स इन, क्रेडिट करो बिल्स पेबल को, एंड व्हेन एवर बिल्स पेबल गोज आउट, डेबिट करो बिल्स पेबल। सो रिमेंबर दिस सिंपल आइडिया, then this entire chapter will be very easy for you. We have to pass mainly general entries. Similarly, we also have to learn ledger also. But mainly general entry आएगा आपको एग्जाम में, तो 10 मार्क आपको मिलेगा. So you have to be very careful. Remember this rule very well. Remember this idea also. As far as bill paper is concerned, this hint is useful. So remember this, and we will start with the mini problems first. पहला मैं small problems लेता हूँ. I will start with the small problems. Then I will move to the full-fledged problems. Okay? So remember these rules so that you will find it easy. So let us take one small example. See the problem. Mayur sold goods of rupees 4,000 to Sachin on credit. तो इसका एंट्री कैसा आएगा? देख, यू नो व्हेन वी आर पासिंग एंट्री, वी हैव टू पास द एंट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सही ऑर्डर से पास करना है. पहला ट्रांजैक्शन हुआ उसका पहला एंट्री, दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ उसका दूसरा एंट्री, लाइक दैट. डोंट मिस द ऑर्डर. तो लेट मी रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट. मयूर सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 4,000 टू सचिन ऑन क्रेडिट एंड ड्रू अ बिल फॉर 3 months. Sachin accepted it and returned it to Mayur. On the due date, the bill was honored by Sachin. Pass necessary journal entry in the books of Mayur. तो draw the columns of journal. आपको मालूम है journal entry में 5 कॉलम है. पहला date, then particular, then LF number, then debit, and then credit. Then at the top you write here in the journal of. Mayur. मयूर इज व्हाट? ड्रॉवर. मयूर ड्रॉवर है, तो ड्रॉवर के
बुक्स में हमको एंट्री मारना है। तो दिस इज मिस्टर मयूर, जस्ट मन में चित्र लाओ, विजुअलाइज, दिस इज मिस्टर मयूर, इसके बुक में हमको एंट्री मारना है। ही सोल्ड गुड्स टू सचिन ऑन क्रेडिट, ये है पहला ट्रांजैक्शन। देन सेकंड ट्रांजैक्शन कौन सा है, ही ड्रॉ द बिल ऑन सचिन विच इज एक्सेप्टेड बाय सचिन, सचिन ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, ये हो गया सेकंड ट्रांजैक्शन। और बाद में ड्यू डेट को सचिन मेक्स द पेमेंट ऑफ बिल, दैट इज ऑनर द बिल। So there are three transactions given in this small sum. We have to pass three entry, one by one in proper order. So first of all, I will pass first entry. Mayur sold goods of rupees 4,000 to Sachin. So from the side of Mayur, you have to think and you have to decide which account should be credited, which account should be debited. आपको मालूम है Mayur sold goods to Sachin, तो इसमें sales account का संबंध है। और दूसरा, he sold goods to Sachin on credit. When he sell on credit, पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट जाएगा, तो सेकंड इफेक्ट गोज टू सचिन अकाउंट। जब भी उधार पे माल बेचा जाता है तो पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट जाएगा। सो देयर आर टू अकाउंट अफेक्टेड। फ्रॉम द साइड ऑफ मयूर व्हाट हैपेंड, सेल्स इज इनकम। मयूर के लिए क्या है, सेल क्या हो गया, इनकम हो गया। इनकम बोलेगा तो क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको मालूम है, यू नो द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स। सो हियर सेल्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट करने का। व्हेन योर गुड्स सोल्ड, इट इज इनकम फॉर द सेलर, तो मयूर इज द सेलर, ही सेल्ड गुड्स, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। सचिन इज व्हाट, ही इज रिसीवर ऑफ गुड। सचिन इज अ पर्सन, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसने माल बेचा, इसने रिसीव किया, इसने पेमेंट नहीं की है, ही इज नॉट गिवर ऑफ कैश, ही इज ओनली रिसीवर ऑफ गुड्स, तो इसका अकाउंट डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर। तो फर्स्ट एंट्री है ऐसा, सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट 4,000 डेबिट कॉलम में, 4,000 क्रेडिट कॉलम। Below that, immediately you have to write narration. Being goods sold on credit. क्रेडिट पे माल बेचा, ये कौन बोल रहा है, मयूर बोल रहा है। These are the statement spoken by मयूर, remember. So this is our पहला एंट्री हो गया, सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सचिन इज रिसीवर एंड सेल्स इज आवर इनकम। Then इसके बाद what happened? मयूर draws the bill for 4,000 on Sachin for 3 months. 3 महीने का बिल ड्रॉ। इसने बिल ड्रॉ किया है, इसके बाद भेजा, इसने एक्सेप्ट किया और रिटर्न करके इसको दे दिया। तो मयूर के बुक्स में मयूर इसे क्या बोलेगा, बिल्स रिसीवेबल। For Mayur, that is bills receivable. So in the books of Mayur, when you are passing entry, always think from his side. So मयूर एंट्री कैसा बनेगा, ए 4,000 रुपये का नोट आ गया उसके पास, बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट, सो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करो। और ये नोट देने वाला कौन है, सचिन, सचिन इज गिवर, ये पर्सनल अकाउंट है, सचिन अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो हियर सचिन इज गिवर, तो इसका अकाउंट क्रेडिट। तो सेकेंड एंट्री ऐसा आएगा, बिल्स रिसीवर अकाउंट डेबिट, bills receiver comes and Sachin account credit, he is giver. $4,004. Narration आएगा, being acceptance received. एक्सेप्टेंस मतलब बिल, सो सचिन से बिल मिला एक्सेप्ट करके, सो दैट इज कॉल्ड बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव। सो दिस इज हाउ सेकंड एंट्री विल अपीयर। ये एंट्री याद रखो ठीक से,
every time you have to pass entry in the books of drawer. Whenever he draws the bill on drawing, always entry look like this: bills receiver account debit to drawing account. हमेशा याद रखना, बिल्स रिसीवर अकाउंट डेबिट करने का और ड्रॉवी का अकाउंट क्रेडिट करने का. व्हेनेवर ड्रॉवर ड्रॉज द बिल, ड्रॉवर की बुक में ऐसे एंट्री आएगा. इसके बाद 3 महीना खत्म हो गया. ड्यू डेट को ये बिल मयूर ने सचिन को प्रेजेंट किया. ड्यू डेट को आफ्टर 3 मंथ मयूर ने बिल दिखाया सचिन को. ही प्रेजेंटेड दिस बिल टू सचिन और सचिन ने उसका पैसा दे दिया, कैश दे दिया 4000. सो बिल इज ऑनर्ड. द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. उसका एंट्री कैसा आएगा? अभी फ्रॉम द साइड ऑफ मयूर क्या होगा? कैश कम्स इन, 4000 कैश कम्स इन. समझा? तो कैश अकाउंट को डेबिट करो, ये एसेट है, ये प्रॉपर्टी है. एसेट कम्स टू डेबिट. बिकॉज ऑफ दैट बी आर नाम का एसेट अभी खत्म हो गया, अभी इसको कोई वैल्यू नहीं. सो बी आर गोज समझने का क्रेडिट करो. तो व्हेन एनी एसेट कम्स डेबिट, व्हेन एनी एसेट गोज क्रेडिट. सेकंड रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एज पर दैट रूल you can debit cash account and credit bills receiver account. The third entry will be like this: cash account debit because cash comes in, to bills receiver account which goes out. 4,000. Being the bill honored on due date. So this is how the last entry will be: cash account debit to bills receivable. Here cash comes in from Sachin and we are asset is no more our asset, it is finished. अभी इसको कोई वैल्यू नहीं. So whenever any asset comes, debit. Whenever any asset goes or finished, credit. So this is how entry appears when bill is honored. So narration will be like this: being the bill honored on due date. Bas. I hope you understand. So this is a mini sum I have taken. I will take few more sum. Second sum में क्या लिखा है देखो. I have given you the sums. In the second sum, same problem. Mayur sold goods for rupees 4,000 to Sachin on credit. He draw a bill. Sachin accepted it for 3 months and returned it back to him. On the due date अभी बिल डिसऑनर हो गया तो क्या कर ले? तो क्या होगा देखो. पहला एंट्री सेम ऐसे आएगा. देखो वन सेकेंड. सेकंड सम मयूर सोल्ड गुड्स, तो एंट्री ऐसा आएगा: सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सचिन अकाउंट डेबिट. सेल्स इज इनकम फॉर मयूर एंड सचिन इज रिसीवर. बराबर, उसको माल बेचा. पहला एंट्री सेम. उसके बाद मयूर ड्रॉज अ बिल और सचिन, सचिन ने एक्सेप्ट किया. सेम एंट्री. बिल्स रिसीवर अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट. लेकिन ड्यू डेट को जब इसने प्रेजेंट किया बिल, मयूर प्रेजेंटेड बिल टू सचिन एंड सचिन ने पैसा नहीं दिया. ही डिसऑनर हिज एक्सेप्टेंस, ही डिसऑनर द बिल. तो क्या एंट्री आएगा? बस कुछ नहीं, ये जो एंट्री रिवर्स करना है. जब ये बिल एक्सेप्ट किया था वही एंट्री या टू जस्ट रिवर्स. कैश मिला नहीं तो कैश लिखने का सवाल नहीं. राइट हियर सचिन अकाउंट, Sachin's account debit to bills receivable. This is how you have to write. Sachin's account debit to bills receivable, being the bill dishonored. Being the bill dishonored on due date. Narration will be like this: being the bill dishonored on due date. So this is how whenever bill is dishonored, drawer entry ऐसा मानेगा, just reverse of this. When bill was drawn, वो जो entry है, that entry we have to just reverse. क्योंकि because of dishonor, bill receiver का value खत्म हो गया और dishonor हो गया, so it is no more our assets. So उसको credit किया and Sachin become once again our debtor. जो भी हमारा डेटर बन जाता है उसको हम डेबिट करते हैं. तो सचिन अकाउंट डेबिट. अभी सचिन को हम 4000 मांग सकते हैं वापस. ही बिकम आवर डेटर. बी आर का तो पैसा उसने दिया नहीं.
So this is how whenever bill is dishonor, entry will be like this. ड्रॉवी अकाउंट डेबिट करने का हमेशा ड्रॉवर के बुक में, क्रेडिट करने का बिल्स रिसीव, समझा? सो दिस इज हाउ एंट्री विल लुक लाइक. अभी थर्ड प्रॉब्लम में क्या लिखा है, देखो सेम प्रॉब्लम ऐसा ही कि मयूर सोल्ड गुड्स टू सचिन 4000 का, देन ही ड्रॉज द बिल फॉर 3 months विच इज एक्सेप्टेड बाय सचिन. ड्यू डेट को उसने बिल डिसऑनर किया और मयूर ने नोटरी पब्लिश के बाद जाके नोटिंग चार्जेस भी पेड किए. नोटिंग चार्जेस पेड बाय मयूर इज 100 रुपीज. ये तीसरा पॉसिबिलिटी उसका देखो अभी हाउ द एंट्री विल लुक लाइक. फर्स्ट टू एंट्री विल बी सेम, बराबर. मयूर सोल्ड गुड्स टू सचिन, उसका ये एंट्री सचिन अकाउंट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बिकॉज इट इज आवर इनकम. सचिन इज रिसीवर, उसका अकाउंट डेबिट. देन बिल ड्रॉ क्या एक्सेप्ट किया, उसका एंट्री भी सेम, बिल से अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ भी मतलब सचिन से अकाउंट. ऑन द ड्यू डेट जब बिल डिसऑनर किया इसने एंड मयूर ने नोटरी पब्लिश के बाद जाके नोटिंग चार्जेस पेड करके नोटिंग किया, ₹100 एक्स्ट्रा ही पेड. तो हाउ एंट्री विल लुक लाइक. तो कैसा करने का, ये एंट्री रिवर्स करो पहले. सचिन अकाउंट डेबिट, ही बिकम डेटर. सचिन अकाउंट डेबिट, 2 बिल्स इसे रखता है. टू बिल्स से रखा है. बिल से कितना था, 4000. एक्स्ट्रा कैश पेड किया हमने 100 रुपया एज ए नोटिंग चार्जेस. तो राइट हियर कैश है, टू कैश है. कैश गोज आउट 100 रुपीज फॉर नोटिंग चार्जेस, तो 100 रुपीज. तो इसका मतलब अभी सचिन के पास हम टोटल कितना डिमांड करेंगे, 4000 प्लस 100 रुपीज. सो 4100 टोटल करेंगे. तो Sachin become debtor by 4100. We have to recover from Sachin not only this 4000 of bill but also 100 rupees of noting charges. We have to recover from Sachin. So Sachin become our debtor by 4100. इसलिए Sachin's account debit 4100, टू bills is account 4000, टू cash account 100. ऐसा एंट्री है का when bill is dishonored by drawee and noting charges are paid by drawer. The narration will be being the bill dishonor and noting charges paid. Narration will look like this. So this is how you have to pass entries. In examination normally they will give you problem in such a manner that you will have to pass 6, 7 or 8 entries. ये 2-3 एंट्री का मैंने स्मॉल सम लिया है जस्ट फॉर द बिगिनिंग ऑफ दिस, टू बिगिन विद दिस टॉपिक. तो छोटा छोटा सम लेता हूँ तो आपके दिमाग में जाएगा बराबर. एक बार ये गया तो आई विल टेक बिग प्रॉब्लम्स. समझा ठीक से? तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बिल ड्रॉन, एक्सेप्टेड, इट इज डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड. तो ठीक से वॉच वेरी केयरफुली ऑल द मिनी प्रॉब्लम फर्स्ट. स्टार्टिंग में मैं हमेशा पहला छोटा प्रॉब्लम लेता हूँ. इन द बिगिनिंग आई विल टेक ओनली प्रॉब्लम्स इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. वो ख़त्म करने के बाद आई विल टेक प्रॉब्लम्स इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी. समझा? तो इफ़ यू एनी डाउट हियर यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई विल टेक few more problem, mini problems. Okay. Now remember, whenever drawer draws a bill on drawee, drawee accept the bill and return it to drawer. बराबर? Drawer will call that bill as bills receivable. ड्रॉवी विल कॉल दिस डॉक्यूमेंट एज बिल्स पेड. अभी ड्रॉवर जो है उसके पास 4 ऑप्शन. सपोज ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया ड्रॉवी के ऊपर 5000 का 3 महीने के लिए. जस्ट इमेजिन. तो 3 महीना बिल इसके पास रहेगा ड्रॉवर के पास. ड्रॉवर इज द होल्डर ऑफ बिल.
उसके पास 5,000 का एक नोट ही है, एक प्रॉपर्टी है, ही विल कॉल दैट बिल्स रिसीवेबल. तो व्हाट ही कैन डू ऑफ दिस बिल, इस बिल का वो क्या कर सकता है ड्यूरिंग दिस 3 मंथ. उसके बाद 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है ही कैन रिटेन द बिल विथ हिमसेल्फ. ही कैन रिटेन द बिल विथ हिमसेल्फ टिल मैच्योरिटी. 3 महीना खत्म होने तक वो अपने पास ही बिल रखेगा. ऑन द ड्यू डेट ही विल प्रेजेंट द बिल टू ड्रॉवी एंड ड्रॉवी विल मेक पेमेंट. दूसरा ऑप्शन क्या, यदि बिल एंडोर्स करेगा, he may endorse the bill to somebody else during these 3 months. ड्रॉवर के पास से सेकंड ऑप्शन है, ये 5,000 का नोट उसके पास है, he can give it to somebody else, he can transfer it to somebody else. So this is transferable document, it is negotiable, so he can endorse the bill. ये दूसरा ऑप्शन है. तीसरा ऑप्शन है he can discount the bill with bank. He can give this bill, he can sell this bill to the bankers and bank will give immediate cash by deducting small amount. It is the option, he can discount the bill with the bank. और चौथा ऑप्शन है he can send the bill to the bank for collection. वो बैंक को कलेक्शन के लिए भेज सकते, बैंक फॉर कलेक्शन. तो वी हैव टू लर्न ऑल द एंट्रीज. रिमेंबर एग्जाम में कुछ भी आ सकता है. तो अभी पिछले प्रॉब्लम में, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम वी लर्न दिस वन, कि बिल अपने पास ही रखा था मयूर ने, ड्यू डेट को प्रेजेंट किया, उसने पैसा दिया, सो मयूर रिटर्न द बिल. अभी सेकंड सब में आई विल टेक दिस पॉसिबिलिटी कि ड्रॉवर व्हेन एंडोर्स द बिल हाउ द एंट्री विल लुक लाइक. वॉच इट वेरी केयरफुली. सी द सेकंड एग्जाम्पल. तो सब ट्रांजैक्शन जो एग्जाम में आएगा आई विल कवर, यू जस्ट पे अटेंशन, watch very carefully and accordingly pass entry in the exam and be successful. See the second sum is given. Komal purchased goods worth rupees 5,000 from Shivani on credit and accepted a bill drawn by Shivani for 2 months. Okay, so this is Komal. Just मन में चित्र लाओ. And this is Shivani. Shivani is seller, Komal is a buyer. Komal bought the goods. कोमल ने माल परचेस किया, इसका मतलब शिवानी ने सेल की. शिवानी सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 टू कोमल और उसके ऊपर फिर बिल ड्रॉ किया फॉर 2 मंथ. कोमल ने एक्सेप्ट करके इसको दे दिया. तो पहला ट्रांजेक्शन कौन सा है, शिवानी सोल्ड. तो वी हैव टू पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ शिवानी. सो राइट हियर इन द जर्नल ऑफ शिवानी. शिवानी इज व्हाट, सेलर. सेलर मतलब ड्रॉवर. तो शिवानी इज ड्रॉवर, उसके बुक में एंट्री माना है, तो थिंक फ्रॉम हर साइड, उसकी नज़र से सोचो. पहला ट्रांजेक्शन है शिवानी सोल्ड गुड्स टू कोमल. तो इसकी नज़र से क्या हो गया, सेल्स हो गया, गुड्स सोल्ड. सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इट इज इनकम फॉर शिवानी. और क्रेडिट पे बेचा तो कोमल अकाउंट पे फिर जाएगा, आपको मालूम है, यू नो इट. इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन वी ऑलवेज गिव इफेक्ट टू पर्सनल अकाउंट. एंड जो पर्सन रिसीवर है उसको डेबिट करते हैं, जो पर्सन गिवर है उसको क्रेडिट करने का. सो हियर कोमल इज रिसीवर, सो कोमल का अकाउंट डेबिट. तो एंट्री आएगा कोमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो इन द बुक्स ऑफ शिवानी द फर्स्ट एंट्री विल लुक लाइक दिस. कोमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000. बीके में एक्सपर्ट होने के लिए एक ही चांस है, एक ही पॉसिबिलिटी कि यू ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम प्रॉब्लम, लर्न ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, सी ऑल वेराइटीज एंड प्रैक्टिस इज, उसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो. प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट. सो हियर कोमल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. राइट हियर बीइंग गुड्स सोल्ड on credit. You may write narration like this, being entry for credit sale. तो सेंटेंस चेंज होगा चलेगा, मीनिंग शुड नॉट चेंज. Narration should always begin with the word being and it should be as brief as possible. So Komal's account debit to sales account, ये पहला एंट्री.
उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन इज व्हाट, शिवानी ड्रॉज बिल ऑन कोमल, कोमल एक्सेप्ट करके उसको देती है। शिवानी कॉल दैट बिल्स एज बिल्स रिसीवेबल। सो फॉर शिवानी व्हाट हैपन, बीआर कम्स, प्रॉपर्टी आ गया तो उसको डेबिट करेगी। एंड कोमल इज गिवर, कोमल का अकाउंट क्रेडिट करेगी। पर्सन अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर। तो सेम एंट्री अगेन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू कोमल अकाउंट मतलब ड्रॉविज अकाउंट 5,000। Narration being acceptance received. So same entry again, bills received account debit to drawee account. Whenever bill is drawn and accepted, drawer की बुक में same entry always remember, bills received को debit करो, drawee को credit करो। BR asset comes, that's why it is debited, and drawee ने payment किया एक तरह से bill के रूप में, so it is giver, drawee is giver, so उसका account credit। On the due date, bill was duly honored. Due date को bill honored हो गया नहीं, wait a minute, आगे लिखा है what happened next, शिवानी एंडोर्स दिस बिल टू वंदना। शिवानी ने बिल क्या किया, 2 महीना अपने पास रखा नहीं, शी एंडोर्स दिस बिल टू वंदना, वंदना इज थर्ड पार्टी। शिवानी ने बिल 5,000 का और उसको दे दिया। तो एंट्री कैसा आएगा देखो अभी शिवानी के बुक में, इन द बुक्स ऑफ शिवानी वर टू पास एंट्री। तो शिवानी एंट्री मारेगी, बीआर नाम का प्रॉपर्टी गोस, एक तरह से नोट चला गया 5,000 का, सो क्रेडिट व्हाट गोस, बिल्स रिसीवर, क्रेडिट करो। और वंदना कौन है, रिसीवर, इस नोट को कौन रिसीव करेगी, तो डेबिट द रिसीवर, वंदना अकाउंट डेबिट। तो थर्ड एंट्री ऐसा है, वंदना's अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। $5,005. So this is the entry for endorsement. Bill is endorsed to Vandana. So Shivani will pass entry like this. समझा? Being the bill endorsed. Such entry will look in the books of Shivani. अभी ड्यू डेट को बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड, ड्यू डेट को मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 मंथ व्हेन वंदना प्रेजेंट, अभी बिल इसके पास है बराबर, वंदना इज द होल्डर ऑफ बिल और उसने इसको बिल प्रेजेंट किया तो उसने कैश दे दिया। तो दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन वंदना एंड कोमल। सो नो एंट्री विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ शिवानी, शिवानी की बुक में एंट्री आने का सवाल ही नहीं, सो इसलिए शिवानी की बुक्स में एंट्री नहीं आएगा। व्हेन बिल इज ऑनर्ड, इसने बिल ऑनर किया, ड्यू डेट को ही वंदना प्रेजेंटेड बिल टू कोमल, कोमल मेक्स कैश पेमेंट टू वंदना, बिल इज ऑनर्ड, मैटर इज क्लोज। एंट्री विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ वंदना, एंट्री विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ कोमल, बट नो एंट्री विल बी देयर इन शिवानीज बुक, उसका कोई संबंध नहीं आता। सो शिवानी के बुक में एंट्री नहीं आएगा, इतना ही एंट्री आएगा। समझा ठीक से? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पहला एंट्री माल बेचा, सेकेंड एंट्री बिल ड्रॉ किया, थर्ड एंट्री बिल को एंडोर्स किया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो गया, बिल इज ऑनर, बट उसका एंट्री इसके बुक में नहीं आएगा, सिंस इट हैज नो कनेक्शन, शी हैज नो कनेक्शन। वंदना को पैसा मिला, इसने पेड किया, लायबिलिटी खत्म, इसको इसका पैसा मिला, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ शिवानी। ओके, सो वी आर लर्निंग हाउ टू पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, बराबर। अभी 4 प्रॉब्लम हो गया, अभी 5वां लेता हूँ मैं। सेम प्रॉब्लम है, वॉच वेरी केयरफुली वन सेकेंड, अ लिटिल डिफरेंस। कोमल परचेज गुड्स फ्रॉम शिवानी वर्थ रुपीज 5,000 ऑन क्रेडिट। तो पहला एंट्री ऐसा आएगा, इन द बुक्स ऑफ शिवानी वी आर पासिंग एंट्री, कोमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर।
Komal is receiver, and sale is our income. So in the books of Shivani, entry will be like this: being goods sold on credit. उसके बाद शिवानी draws a bill on Komal. बिल सीजर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ भी कौन है? कोमल. कोमल्स अकाउंट डेबिट. जब भी ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है एक्सेप्ट करके इसको भेज देता है तो एंट्री कैसा आएगा? ऑलवेज रिमेंबर बी आर कम्स, तो बिल सीजर अकाउंट डेबिट एंड कोमल इज गिवर, सो कोमल अकाउंट क्रेडिट. सो ऑलवेज यू बाय हार्ट दिस वन, रिमेंबर परमानेंटली कि व्हेनेवर ड्रॉवर की बुक में एंट्री मारोगे बिल ड्रॉ किया तो एंट्री ऐसा आएगा: बिल सीजर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ विज अकाउंट. उसके बाद व्हाट हैपन? दिस बिल शिवानी एंडोर्स टू वंदन, बराबर? वंदना को एंडोर्स किया तो एंट्री कैसा आएगा? फ्रॉम द साइड ऑफ शिवानी बी आर गोज टू बी आर अकाउंट क्रेडिट एंड वंदना इज रिसीवर, सो वंदना अकाउंट डेबिट. वंदना अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर. दिस इज द एंट्री फॉर एंडोर्समेंट. सो बीइंग द बिल एंडोर्स. अभी समझो ऑन द ड्यू डेट वंदना प्रेजेंटेड बिल टू कोमल and Komal dishonor the acceptance. कोमल ने पैसा नहीं दिया तो what will happen? Vandana will inform this to Shivani and then Shivani has to pass entry. अभी शिवानी को एंट्री मारना पड़ेगा. कोमल ने जब बिल डिसऑनर किया तो डेफिनेटली वंदना will inform it to Shivani. Shivani will pass entry. How she will pass entry? Just always remember whenever bill is dishonored by drawee तो ड्रॉवर क्या करेगा? ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट करेगा. ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर बिल इज डिसऑनर तो ड्रॉवर ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट करता है. तो कोमल्स अकाउंट डेबिट. कोमल्स अकाउंट डेबिट बिकॉज शी बिकम वन सेकेंड डेटर. जब ड्रॉवी बिल डिसऑनर करता है तो शी बिकम डेटर अगेन एंड हर अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ड्रॉवर. तो हमेशा याद रखना कि जब भी बिल डिसऑनर करेगा ड्रॉवी तो हर अकाउंट शुड बी डेबिटेड. तो कोमल्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? अभी वंदना था जिसको एंडोर्स किया उसका था. क्यों वंदना अकाउंट? बिकॉज शी बिकम नाउ क्रेडिटर. अभी ये जो 5,000 का बिल हमने दिया उसका पैसा उसे मिला नहीं, दैट मीन्स वो 5,000 अभी शिवानी को देना पड़ेगा इसको. द पर्सन टू हुम वी सपोज टू मेक पेमेंट इज कॉल्ड क्रेडिटर. और जो हमारा अभी क्रेडिटर बन गया है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा. देयरफॉर एंट्री विल बी लाइक दिस: कोमल अकाउंट डेबिट टू वंदना का. बिल को एंडोर्स किया था वो डिसऑनर हो गया तो एंडोर्सीज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. दैट एंडोर्सी इज आवर क्रेडिटर नाउ. रिमेंबर, सो कोमल बिकम डेटर एंड वंदना बिकम क्रेडिटर बाय 5,000. ऐसे रहेगा बीइंग द बिल डिसऑनर. ऑन ड्यू डेट. सो दिस इज अवर ए स्मॉल सम. ठीक से समझो. क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू कोमल बाय शिवानी, उसका एंट्री. देन शिवानी ड्रॉज द बिल ऑन कोमल, उसका एंट्री. Then Shivani endorse the bill to Vandana, उसका एंट्री. एंड एंडोर्स बिल इज डिसऑनर बाय ड्रॉवी तो उसका एंट्री ड्रॉवर के बुक में ऐसा है: ड्रॉवी इज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स. ड्रॉवी बिकम डेटर, एंडोर्सी बिकम क्रेडिटर. समझा? अभी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज गिवन द सम नंबर 6, सेम सम, लेकिन एक दिया कि इसमें वंदना ने नोटिंग चार्जेस पेड किए तो व्हाट विल हैपन? नोटिंग चार्जेस पेड बाय वंदना इज 150 सपोज. तो प्रॉब्लम नंबर 6 पढ़ो, यू विल कम टू नो सेम प्रॉब्लम. बाय द एंड क्या हो गया? व्हेन बिल वाज प्रेजेंटेड बाय वंदना टू कोमल, कोमल डिसऑनर द बिल, सो वंदना अप्रोच नोटरी पब्लिक एंड पेड नोटिंग चार्जेस रुपीज 150. देन व्हाट विल हैपन? तो पहला एंट्री सेम ऐसे: गुड सोल्ड, बिल ड्रॉप, बिल एंडोर्स. बट ड्यू डेट को व्हेन बिल इज डिसऑनर एंड द एंडोर्सी मेक पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस तो एंट्री ऐसा ही आएगा: कोमल्स अकाउंट डेबिट टू वंदनाज अकाउंट. बट 150 अमाउंट में ऐड करो, ऐड द अमाउंट 150 हियर. $5,150.
इतना ही करना पड़ेगा. नरेशन लिखो, बीइंग द बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड. बीइंग द बिल डिसऑनर on due date and noting charges paid by Vandana. तो इसमें क्या हो गया? We have to recovered 5,150 from Komal. We मतलब शिवानी, खुद को शिवानी समझो, उसके बुक में आप एंट्री मार रहे हो. So we have to recover 5,150 from Komal, and we have to pay that 5,150 to Vandana. इसलिए Komal is debtor by this much amount and Vandana is our creditor by this much amount. Debtor मतलब ऐसा person from whom we have to recover the money, and creditor is a person to whom we have to make payment of that money. समझा? So only add the amount here and narration ऐसा लिखो, being the bill dishonor on due date and noting charges paid by Vandana. I hope you understand. फिर भी अगर नहीं समझा तो you can call me. Okay, bye. See you soon.